Hello class. Today under human resource management we will take the topic related with an overview, the introduction, the evaluation of HRM, that is known as human resource management. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका जो ओवरव्यू है उसको डिस्कस करेंगे आज. बेसिकली द डेफिनेशन और द इंट्रोडक्शन इज़, as you can see, in the last few years there has been a vast change in the field of human resource management, that is basically called the HRM. HRM का जो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो चुका है पास्ट टाइम से. प्रीवियस टाइम में इसे ह्यूमन रिसोर्स को सिर्फ काम के लिए यूज़ किया जाता था, सिर्फ उससे लेबर लिया जाता था, उसे वेजेस या सैलरी प्रोवाइड किया जाता था. दैट वाज बेसिकली द पर्सनल मैनेजमेंट. बट आज वो पर्सनल मैनेजमेंट चेंज होके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बन गया है, बिकॉज नाउ वी ट्रीट द ह्यूमन एज द रिसोर्स फॉर एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. HR मैनेजमेंट एक इफेक्टिव ब्रांच हो गई है. HR practices form the culture in business management. Now the planning and the practice who understand the significance of these changes, they are using this help in providing the valuable human resource management. So आप कह सकते हैं कि human resource को अब एक management के तौर पे देखा जाता है और उनको effectively कैसे यूज़ किया जाए इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है. Well, the definition says, whenever we are employing the people, we are developing their resource utilization, we are maintaining and compensating their services in tune with the job and organizational requirements. Basically आपने human resources की जो कंसिस्ट है करता है वो उसका टोटल स्किल्स, क्रिएटिव एबिलिटीज़ क्या है, उसके टैलेंट्स को, एप्टीट्यूड को एक ऑर्गेनाइजेशनल वर्कफोर्स में हम मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. Or we can say, in addition to this, the values, attitudes and beliefs of the individual involved in it. Basically we have to do, हमें human resource का जो देखना है, हमें उसे obtain करना है, उसे recruit करना है, हमें work staff select करना है, उसे develop करना है through training and development. Next is performance, how we are evaluating them, how we are monitoring. आप उनके effective, उनकी abilities, उनकी acquired knowledge, उनके skills, talents को, employees को monitor करते हो. यानी basically what we do, we are checking their performance. Then finally we are providing the reward. Reward is basically the compensation and the benefits जो organization अपने workers को, अपने staff को, अपने human resources को provide करती है. Engage is basically the talent management and the career development. Basically the quality and the quantity of human resources are modified by environmental factors such as उन्हें education provide कर रहे हैं, training provide कर रहे हैं, development provide कर रहे हैं. This helps the human being to produce new ideas, develop and improve their capital goods and modify the available physical and financial resources in order to achieve greater productivity. Well, in short हम कह सकते हैं, हम जितनी productivity अपने वर्कर्स से लेना चाहेंगे हमें उन पे मैक्सिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा. Here you can see the HRM functions also. HRM functions कंसिस्ट करता है स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ HR एक्वाइजेशन, यानी हमें हमारा जो वर्कफोर्स है, जो हमारे वर्कर्स हैं, उन्हें कहाँ से एक्वायर करना है. बेसिकली वी हैव टू डू द प्लानिंग कि कहाँ से रिक्रूटमेंट होगा, सोर्सेज क्या होंगे, हम वर्कर्स को कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, उनका रिक्रूटमेंट, उनके सिलेक्शन, उनके प्लेसमेंट का जितना भी प्लानिंग और प्लॉटिंग होती है वो फर्स्ट एरिया में होती है. देन वी गो फॉर द HR डेवलपमेंट. बेसिकली हमें हमारे वर्कर्स का डेवलपमेंट करना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस, उनका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उनका पर्सनल हमें इन्हेंसमेंट करना है. सो बेसिकली फॉर दिस वी डू द करियर प्लानिंग, we give them training and development and we are giving them organizational development. समय समय पे seminars, workshops, trainings के थ्रू हम उन्हें enhance करते हैं ताकि उनके skills, उनकी qualities को ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना utilize कर सकें. The third HRM function is basically for the performance and compensation. परफॉर्मेंस जहाँ पे मॉनिटर की जा रही है, वी आर प्रोवाइडिंग दैम बेसिक इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स. उनको मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी हम मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो कंपनी में अपना
मैक्सिमम अपनी स्किल्स को प्रोवाइड कर सके, उनका जो प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस है, जो उनका सोशल सिग्निफिकेंस है, और यू कैन से द ऑर्गेनाइजेशनल सिग्निफिकेंस है, इज़ बेसिकली टू डेवलप द पीपल, टू मेंटेन द डिग्निटी. Now next is the motivation and maintenance, where we are providing the workers empowerment. हम उन्हें participation का proper chances देते हैं. We are providing them a healthy environment, and we are developing and utilizing their creativity. We are giving them health and safety securities also. We are giving them HR mobility, where we are providing proper physical and social environment at the workplace to utilize the capability of the people effectively. कितने effectively आप workers से काम ले सकते हो, कैसे उनको अपने personas को develop कर सकते हो to meet the demand of the workers effectively, and to create the motivating environment. It is very much necessary, students. हर एक मैनेजर्स या हर एक मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड द एम्प्लॉय द स्किल्स एंड एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द वर्क प्लेस, कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कैसे अचीव कर सकेगा. तो वो तभी कर सकेगा व्हेन एवर वी आर गिविंग दैम, व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन विद वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़, व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द वर्कर्स. नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशंस. इंडस्ट्रियल रिलेशंस बेसिकली जहाँ पे हम बात करते हैं डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंस मैनेजमेंट की, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मैनेजमेंट की. whenever we are developing the personnel to meet the demand of the worker effectively, हमें देखना पड़ता है कि उनके संग किसी तरह की बायसनेस ना हो, उनके संग किसी तरह का इल ट्रीटमेंट ना हो. So here the industrial relations and the labor policies deals with the collective relationship between the management, employees and government. किसी भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है रिलेटेड विद द वेजेस, सैलरीज, जो भी उनके ग्रीवेंसेस हैंडलिंग है, अगर किसी को कोई कंप्लेंट है, किसी को कोई फीडबैक देना है, वेन एवर वी टेक द डिसिप्लिन मैनेजमेंट एंड वी आर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस लेबर लॉज. तो वो सारा डिस्प्यूट्स और ग्रीवेंस मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर लॉ पर बेस्ड होता है. So we can say that the human resource management or the personnel management where we are taking the policy formulation, जहाँ पे आप HR की प्लानिंग करते हो, एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करते हो, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनके अप्रेशल टेक्निक्स को स्टडी करते हो. और बेसिकली ये रन करता है 3 फंक्शंस में, जहाँ पे हमारा पर्सनल मैनेजमेंट आता है प्लस इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज आते हैं. Next is HR information system, HR research, HR accounting, HR audit. These are the part of modern HRM, जहाँ पे हम पूरा अपडेट करते हैं उन्हें इंफॉर्मेशन से. उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम रन करता है 2 वे में, फ्रॉम अप टू डाउन एंड फ्रॉम डाउन टू अप. वेल यू कैन से कि इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा 2 वे फ्लो करता है, जहाँ हम वर्कर्स को पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करते हैं टू गिव देयर फीडबैक्स, टू गिव देयर सजेशंस. अगर उन्हें कोई कंप्लेंट है, उन्हें कोई ग्रीवेंसेस हैं, अगर उन्हें किसी तरह का अपना ओपिनियन देना है, तो दे आर फ्री टू गिव दैट. देन नेक्स्ट इज़ HR रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अलग सेल रन करते हैं. सो इट कैन बी सेड दैट द HRM सिस्टम, HR accounting and HR audit, these are the important portion where we are dealing with all the personals, जहाँ पे हम अपने human resources को maximum enhance करते हैं. Now how we can make the people happy while working, when we are treating them as the part of the management, when we are giving them, providing all the levels of organization, एक्शन ओरिएंटेड है, पीपल ओरिएंटेड है, फ्यूचर ओरिएंटेड है. इफेक्टिव HRM हमेशा अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए वर्कर्स का तो हेल्प लेता ही लेता है, उनका डेवलपमेंट, उनको एक मैकेनिज्म के थ्रू, एक कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन के थ्रू वर्क करता है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन में वे करता है. एंड बेसिकली इन शॉर्ट वी कैन से इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशंस. That means we are treating our workers, we are developing we are providing them productive environment, and we are maintaining the balance between job and job seekers.